Okay, so if you have understood the things, let me share the window first. Are you able to see this? Everyone, you're able to see this now? Yes, sir. Yes, sir. So now I'm going to make a figure, a symbolic figure. I'll not waste the time in making the figure. Okay, because I have explained you now. So I'll make a figure and I'll ask you that you tell me the sequence in which it is going to be energized. Okay, and then I will simply tell you the name, that what is the name of that. Okay, so let me make it. I'm not going to show you the wires. I hope you can understand now. Okay, no need to make the wires. I just tell you the position, okay, in which it has to be kept. North, south. Okay. So the coil position is like 4, 3, 2, 1. Okay. This is the first position. Let me draw the next position. 4, 3, 2, 1. This is the second position. Okay. You can copy from here. So this is the first position, okay, and this is the second position of the coil. North, south, okay. The third position is going to be this. 4, 3, 2, 1. Third position is obviously. I hope that you can also predict in your mind. There is no problem now. Okay, after the explanation, there should not be any problem. Okay, and now you can really tell me the sequence. There is no problem at all. Okay, it's the third one, and this is the fourth one. Okay, so this is 4, 3, 2, 1. Okay, and I'm just going to keep it like this. Now the north will come over here and south will come over here. So this is what is position number 1. Okay, this is what is position number 2. This is what is position number 3, and this is what is position number 4. Okay, so I will write this as it is coil A4. Okay, coil 3, coil 2, and coil 1. Okay, and you have to tell me the respective positions for position 1, for position 2, for position 3, and for position 4. The respective things for the position. Okay, I'll write it over here. Here I will write it position number 1, then position number 2, then position number 3, then position number 4. So, okay, fine. Tell me, what will be the position? This position, okay, where you have to keep that this thing. Okay, so what will be the position? Tell me the orientation. See, you want to keep this here and here. Okay, 0, 1, 1, 0. I'm starting with coil 4.
coil 4, what will be the position? 0 1 0. 0 Sir, 0 0. For coil 4 it will be 0, sir. Yes. Okay, coil 4 it will be 0. What about 1. coil 3? 1 1. Coil 3. 1 What about coil 2? 1, sir. 1. 1. Okay, we'll verify that whether it will work or not. And 0. 0 1 1 0 you are telling? 0 0 1 1 0. Yeah. Shall we check it? Yes. Okay, fine. Yes. So, okay, now please unmute yourself now. Okay, so you are telling that you will pass the current through coil 4. Okay, and sorry, you will pass the current through coil 2 and coil 4. Okay, so coil 3, if you are passing the current, okay, it will south north. Okay, and this will be south and north. Okay, then coil number 2, if you are passing the current, that will be south north, south north. Okay, agreed. Okay, that this will be in this position. So what is the first position that you can see is 0 1 1 0. Okay, agreed. 0 1 1 0. Fine. The second one, position number 2. Okay, just tell me the position number 2. So if I ask you that what is the, okay ठीक है, बाद में इसको hex number पे देख लेंगे, ठीक है. 0 1 1 0. So what is the position? Can you tell me what is the position? 0 0 0 1 1, sir. Is it? Oh, sorry, my pass figure here already. Okay, fine. What is the for the second one? Tell me. I will check it. 0 0 1 1. 0 0 1 1. Everyone is agree with this? 0 0 1 1. Okay, let's check it out. 0 0 means you are exciting coil 2 and coil 1. Okay, so coil 2, if you excite, that becomes south north, south north. Okay, and you are energizing coil number 2, sorry, coil number 1. So north, sorry, south north, south north. Okay, so north north, yeah, south north, yeah, correct, perfect. Okay, so position number 2 is done. Tell me for position number 3. Position number 2 is done. 1 0 0 1. Position number 3, 1 0 0 1. Okay, 1 0 0 1. That is correct. Okay, so let me anyway, let me do it for you. Coil number 4, if you are energizing, then south north, south north. Coil number 4, and then coil number 1, then south north, south north. Yeah, correct, done. What is the next position? Position number 4. Yes. Is it going to be 1 1 0 0? Yes, sir. Okay, 1 1 0 0. Just check it out. Okay, 1 1 coil 4 and coil 3. Coil 4 and coil 3 means south north, south north, south north, south north. Is it okay? Yeah. Okay. Fine. Is it okay? Anyone is having any problem? No, sir. Okay. So this first one is called as okay, fine. So I hope that ये आपने ही बताया and this is correct, 100% right. So let me erase it and write it perfectly. Okay. So this is for this is for position number 1, then for position number 2, then for position number 3, then for position number 4. Let me tell you one more point that you may find the sequence to be something else. ओके, लाइक कहीं पे आप देखोगे, अगर कहीं पे किसी बुक में, किसी नोट्स में, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी, तो ये सीक्वेंस कुछ अलग से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, बट सीक्वेंस से ही फॉलो होगा, राइट. इट मे स्टार्ट फ्रॉम दिस वन. जैसे हमारे लिए पहला पोजीशन ये है, तो पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, करेक्ट. ओके, लेकिन किसी बुक में आप देखोगे वो यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, तो उनका फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, तो फोर्थ ये होगा. दैट इज फॉर श्योर. वो कभी सीक्वेंस चेंज नहीं होने वाला है. मतलब 0 1 1 0 के बाद हमेशा 0 0 1 1 ही आएगा. आई होप आई एम मेकिंग दिस पॉइंट क्लियर.
ओके आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, सीक्वेंस नहीं बदलता है, ठीक है। कोई तकलीफ यहां तक? अब इसका नाम बता दूं मैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे नाम, इसको बोलते हैं फुल स्टेपिंग। ओके, फुल स्टेपिंग या फुल ड्राइव मोड। ओके, अब बात ये आती है कि सर फुल ड्राइव मोड का मतलब क्या है। सी, यहाँ पे आप दो कॉइल्स को एनर्जाइज करते हैं एक साथ। यू कैन सी दैट वी आर पोजिशनिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द टू कॉइल्स। ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू एनर्जाइज टू कॉइल्स, मोर करंट, मोर फील्ड, स्ट्रॉन्गर पुल। ओके, तो बहुत ज्यादा टॉर्क से ये बहुत फास्ट ये मूव कर जाएगा, ठीक है, और ये ज्यादा करंट भी कंज्यूम करेगा। जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है फॉर पुलिंग द rotor in between the position, that's going to be extremely high. So it's full drive mode. Okay, अब चलिए अभी इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ठीक है, फिर आपसे वही सवाल, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। पोजीशन चेंज करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, इस सबको मैं हटा देता हूँ। एक और मोड होता है, आपको सब मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, बस आपको नाम नहीं बताया। अब मैं आपको नाम बता के उसको सब कंफर्म करता हूँ, ठीक है, कि वो कौन सा मोड आपने पढ़ा था, कौन सा मोड देखा था, उसको ऐसा कैसा हुआ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब मैं पोजीशन बनाऊंगा। सी व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ द फर्स्ट वन इज इट टेक्स अ लॉट ऑफ पावर टू ड्राइव टू थिंग्स। ओके, correct that the torque produced is extremely high, okay, that is okay, but as far as the power consumption is confirmed, that mode is not that much like useful. Okay, so can we go for the other mode, okay, and create certain things? Okay, so for that I will ask you some certain thing. You can see that this time we will not be in between, okay, this time we will be along the coils. Okay, so the first position that I'm going to draw it over here is this one. Okay, fine, it's this one, it's oriented towards this. So this time I'm not putting the pole over here. Okay, you can assume like it is the orientation is looking like this. इस बार आप ऐसे ही उसको बता सकते हैं, इस बार ये ओरिएंटेशन जो है वो ऐसा है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड देन फोर्थ पोजीशन। ओके, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आई एम मेकिंग इट लाइक दिस। फाइन, ये आपको मैं बता चुका हूं, बताया आपको? यस सर। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए, अभी इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। फोर्थ, बाकी सबको ऑफ रखेंगे, ठीक है। किसको एनर्जाइज करेंगे? फोर्थ को, ठीक है। सो दैट इज वन, ये वही वाला है जिसमें सिर्फ एक सिंगल कॉइल को एक्साइट करते थे, ठीक है। फिर दूसरा कॉइल एक्साइट हो जाएगा तो 3 की तरफ इसका पोजीशन चला जाएगा, फिर 2 की तरफ चला जाएगा और फिर 1 की तरफ चला जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इलैबोरेशन in this one. Clear? Is this clear? Yes sir. Fine. So this you have already seen and there is no problem in this. And if you see this mode, okay, which is called as the wave stepping mode. Okay, let me write down the mode. Okay, it is, sorry मैंने शायद नंबर नहीं दिया वहाँ पे, तो हटा दीजिए। It is called as a wave stepping mode. Okay, ठीक है, या फिर वेव ड्राइव मोड भी कहते हैं। ओके, ऐसा क्यों नाम है? क्योंकि देखिए इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कॉइल 4 को हाई दिया, ठीक है, उसके बाद कॉइल 2 3 को हाई दिया, फिर कॉइल 2 को हाई दिया, कॉइल 1 को हाई दिया, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इफ यू कैन सी इट ओवर हियर, आपका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसको प्लॉट करने का ट्राई करूं तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा,
ये सबसे पहले आपने फर्स्ट को दिया, बाकी टाइम ये 0 रहेगा। ठीक है, ये किसको आपने एनर्जाइज किया? कॉइल नंबर 4 को। ठीक है, तो कॉइल नंबर 4 को आपने एनर्जाइज किया है अभी। ठीक है, तो कॉइल नंबर 4 के लिए हमने ये कर्व बना दिया, कॉइल नंबर 4 को एनर्जाइज किया। उसके बाद कौन एनर्जाइज होगा? कॉइल नंबर 3 एनर्जाइज होगा जैसे ही वो फिनिश होगा। ठीक है, ये थर्ड का हो गया, सॉरी, जैसे ये फिनिश होगा कॉइल नंबर 2 एनर्जाइज होगा, और फिर जैसे ही फिनिश होगा कॉइल नंबर 1 एनर्जाइज होगा। एंड एग्जैक्टली आफ्टर दैट ये जो है वापस से स्टार्ट होगा यहाँ से। इफ आई कैन मेक दिस फिगर फॉर यू लाइक दिस टू बी वेरी प्रिसाइज, फिर वापस से 4 एक्साइड and the sequence continues. I hope you are getting this point. So isn't it looking like a wave, like applied signal for the rotation? Isn't it looking like a wave? दिख रहा है सबको wave की तरह? Yes. Right. So that's why it is called as a wave stepping or wave drive mode. Okay. Fine. Now इसके बाद एक और स्टेप है, ठीक है, और वो स्टेप भी आप देखेंगे। ठीक है, एक और स्टेप है, कौन सा स्टेप? एक और स्टेप मैंने आपको बताया है, याद है? जो मैं आपको स्टेप कंबाइंड एक्सप्लेन कर रहा था, जिसमें पहला और दूसरा, ये जो मैं आपको फर्स्ट पहले इसके पहले बताया, जिसमें बीच में रुकता है कॉइल और इसमें सिर्फ स्टेटर के लॉन्ग स्टॉप कर रहा है, दोनों को मिक्स करेंगे तो हाउ मेनी स्टेप्स विल बी देयर? 4 स्टेप इसके और 4 स्टेप इसके पहले वाले के। कितने टोटल स्टेप्स? 8 स्टेप्स, राइट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ पे देखिए, Yes. एक आपने ये देखा, चलिए बताइए फटाफट से। यहाँ पे in this way, like if you are providing the excitation in this way in full stepping mode, how the coil is moving, in which direction? Clockwise direction or anti-clockwise direction? अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर। देखिए पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन इधर रोटेट हुआ। ओके, कैसे मूव कर रहा है बताइए? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ठीक इसका अपोजिट डालेंगे। ओके, मतलब पहले 1 1 0 0, फिर 1 0 0 1, फिर 0 0 1 1, लाइक दैट। कहीं से भी स्टार्ट करिए। अगर आप इस सीक्वेंस में बढ़ेंगे, इधर से इधर बढ़ेंगे, इस सीक्वेंस में जाएंगे तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इस सीक्वेंस में जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। फाइन, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वही बात, आपने इस तरीके से घुमाया है। देखिए कॉइल कैसा रोटेट कर रहा है बताइए। अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, इस तरीके से जा रहे हैं तो एंटी, बराबर। कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को? यहाँ तक समझने में किसी को कोई तकलीफ? सर ये सब जो आपने नोट्स लिखे हैं इस पे, हाँ, ये वाली भी पीपीटी मदद दे सकते हो? पीडीएफ पे जो मैं आपको यही सेम यही पीडीएफ कॉपी दे दूंगा, इसको कन्वर्ट करके। ओके, ये सब नोट्स आपके पास रहेगा, डोंट वरी। इसका मैं पीडीएफ आपको कन्वर्ट करके दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये पोजीशन 3 है। फाइन, अब बताइए दोनों पोजीशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कंबाइन द पोजीशंस, ओके, ऑफ द कॉइल्स, एंड देन व्हाट आई शुड बी गेटिंग इज, a mode which is called as half stepping mode. इसमें 45 डिग्री वाला रोटेशन होगा। इसमें आपने देखा था फुल स्टेपिंग मोड में 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा था, अगर कॉइल बीच में है तो भी, ओके, और एक बार अगर कॉइल अलोंग द फील्ड कॉइल से तो भी, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन हो रहा था। बट हम इसमें व्हाट यू कैन से इज वी कैन आल्सो टेक द एक्साइटेशन ऑफ 45 डिग्रीज। हमने ऑलरेडी देखा है कैसे मूव करता है, ठीक है। तो उसके लिए जो आपका पोजीशन आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और वो आप समझिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Okay, so I will simply draw that
Now I hope you are understanding that point. Okay, so I'm writing it like step 1 या जो भी आपके steps है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है. Step, so how many steps will be there? There will be 8 steps. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, फिर आपका जो कॉइल A है या कॉइल 4 है, ठीक है. फिर आपका जो कॉइल है, ठीक है, वो कॉइल, जस्ट अ सेकेंड, इफ यू रिमेंबर द ओरिएंटेशन, आपका ये कॉइल 4 था, इस तरीके से आपने बनाया था ना, 4 3 2 1, इस तरीके से बनाया था आपने, ठीक है. तो अभी कॉइल 4 है, कॉइल 3 है, कॉइल 2 है एंड कॉइल 1 है, बराबर. ओके, यही आपका ओरिएंटेशन है आपके कॉइल्स का, ठीक है. नाउ how to fill that thing? I hope you are getting the point that you have to start from any position and then you can move to any position, right? So this way you are going to complete the things. So can I write it directly? I hope that now you can understand by yourself कि वो कौन से position पे जाएगा by giving the proper orientation of the magnetic poles. Shall I write the sequence only? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. राइट. अब आप समझ सकते हैं, एक्चुअली इसको याद करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. इनिशियल पोजीशन आपका कोई भी हो सकता है बट सीक्वेंस से ही होगा, ठीक है. सो दैट इज 1 1 1, देन ऑल आर 0, ओके. देन you have 0 0 1 1 1 0 0 0, then you have 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0, okay, and then 1, then ओके. तो आप देखेंगे इसमें ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है, जिसमें आप हर बार कॉइल को रोटेट करते हैं, ठीक है. और हर बार आपका सीक्वेंस जो है, देखिए, पहले 2 कॉइल एक्साइटमेंट हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 1, इस तरीके का वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है, क्योंकि पहली बार में 2 कॉइल एक्साइट करेंगे, फिर 1 कॉइल, फिर 2 कॉइल, फिर 1 कॉइल, फिर 2 कॉइल, फिर 1 कॉइल, बिकॉज अपने को 45 डिग्री का रोटेशन लेना है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. Say yes or no. और ये आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पहला पोजीशन 1 0 0 ही होगा. लाइक ये पहला पोजीशन कोई भी हो सकता है, राइट, कोई भी हो सकता है पहला पोजीशन, ठीक है. सिर्फ आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस याद करना है. अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा, ओके, और इस तरीके से जाएंगे सो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ओके. एंड इसका जो रिस्पेक्टिव हेक्स नंबर है वो हम लोग याद रखेंगे कि वो सीक्वेंस क्या आता है, एंड देन वी कैन मूव टू द फर्दर थिंग्स, ओके. सो अगर आप देखेंगे 1 0 0 1, सो दैट विल बिकम, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर इट दिस साइड, 0 9 H पहला पोजीशन होगा. उसके बाद आएगा 0 8 H, ओके. देन इट इज कमिंग एज 0 C H, ओके. देन इट इज कमिंग एज 0 4 H. आप मैच करते जाइए. Then it is coming at 0 6 H, 0 2 H, okay, 0 3 H, and 0 1 H, right, corresponding hex equivalent, जो आपको प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा. इसके लिए, इसको रोटेट करने के लिए. Are you getting this point? मतलब वो पोर्ट्स को अगर मैं ये नंबर से, हेक्स नंबर से एक्साइट करूंगा तो अकॉर्डिंगली स्टेपर मोटर के कॉइल पे क्या जाएगा, ये एक्साइटेशन जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ये समझ में आ रहा है सबको? ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है. तो अगर आप इस सीक्वेंस में चलते हैं, मतलब 0 9 फिर 0 8 फिर 0 C, इस सीक्वेंस में ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर वो क्लॉकवाइज रोटेशन देगा. अगर कहीं से भी स्टार्ट करके अपोजिट सीक्वेंस में जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा. इज इट ओके? ये याद हो जाएगा सबको?
Yes, sir. इज कंफर्म, राइट। सिमिलरली आप इसके भी हेक्स इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100, इसका तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये क्या आएगा बताइए, मुझे बता दीजिए, मैं फटाफट से लिख देता हूँ सो दैट आप याद कर लेंगे इसको। सॉरी, इस सीक्वेंस के लिए क्या आएगा, मैं साइड में लिख दूं चलेगा, 08H मैं साइड में लिख दूं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं ऐसे ऐसे करके, 08H नीचे वाला, ठीक है, 04H, 02H and this is 01H. Is it okay? Just check Yes, it out. sir. Fine. Okay. Now what about the previous one? The previous one was this one, ठीक है। इसके लिए भी एक सीक्वेंस आएगा, तो वो सीक्वेंस सिर्फ आपको याद रखना है हेक्स कोड्स का, ठीक है। पहला है, सॉरी, ओके। सबसे पहला पोजीशन है आपका जो है वो है 0110, तो बताइए 0110 के लिए क्या आएगा, 06H आएगा, 06H. ठीक है। और उसके बाद 0011 है तो 03H आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 09H, ओके। और उसके बाद 0CH, बराबर, इट्स 10 बेसिकली 8421 में, सॉरी 12, सो 12 के लिए क्या होता है, C आता है। इज इट ओके? Yes, Is sir. it okay? Yes, sir. Yes, Right. sir. So corresponding sequence you have to remember कि भाई मुझे ये वाले मोड में करना है तो क्या सीक्वेंस अप्लाई करना। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बार फिर से बता दूं। जैसे मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं 09 से स्टार्ट करूंगा और मुझे क्लॉकवाइज चलना है, तो 09 के बाद क्या है, 0CH, 06H एंड 03H, वापस से 09H। तो ये जो सीक्वेंस में अगर मैं पोर्ट्स एक्टिवेट करूंगा ना, तो वो कितना कितना कौन सा रोटेशन में जाएगा, क्लॉकवाइज इन फुल स्टेपिंग मोड, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं 03 से स्टार्ट करूंगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, 03, 09, 0C, 06 लाइक दैट। ओके, आई होप आई एम मेकिंग दिस पॉइंट। किसी को कुछ तकलीफ हो रही है समझने में तो बता दीजिए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद हो जाएंगे। ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट राइट द कोड एंड यू ट्राई टू राइट द सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस का आप एक बार रट्टा मार लीजिए और ये सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 09 के बाद 0C आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप कहीं से भी चाहिए तो यही सीक्वेंस याद कर लीजिए। तो जैसे ही आपको आएगा फटाफट से रफ में लिख लीजिए वो सीक्वेंस एंड फिर प्रोग्राम लिखने में 2 मिनट लगता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, बराबर। अगर किसी को कुछ तकलीफ है तो अभी अभी बताइए, अदरवाइज मैं एक सिर्फ आपको इंटरफेसिंग बता के तुरंत प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, नो क्वेश्चन एट ऑल, ये समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। टेल मी यस और नो। Yes, sir. Okay. Now to interface 8051 with the stepper motor, you need a driver circuitry. Why that is required? Because the stepper motor requires a high current, okay, to drive itself, okay. And this is the circuit that you are going to use is the driver circuitry, okay, in which some sort of you can say uh, uh, like driver transistors are actually employed from inside, and they are going to provide a high current, okay. So a very high current gain is there with those inside those, okay. Like you might have studied about the high current gains by using BJTs, okay. So basically उसमें NPN transistors लगे होते हैं, and I don't remember that mode right now. Not getting that in mind. So basically उसमें NPN transistors लगे होते हैं, and that what they are
capable of providing you the high current. So high current amplifier, it is working as like it provides the high current required for stepper motor. Okay, it provides the high current required for stepper motor. Okay, तो अगर आप इसका सर्किट देखेंगे so आपको यहाँ पे two circuits are there which are going to be used for this purpose. Okay, one is QLN 2003A. Okay, that we will be using in our program. Okay, so that's 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, okay, 6B, 7B, and one common port. Okay, sorry, this side it is the common port, and 7C, 6C, 5C, 4C, 3C, 2C, and 1C. Okay, so if you see there are 8 ports basically from where you can get inputs. Okay, input from 8051. Okay, and you can take a high current output from this one, output for stepper motor. Okay, so ULN 2003A, right? What it serves as a purpose of a current amplifier basically, and that is required for the stepper motor. Okay, so there is one more configuration actually जिसमें 8 ports होते हैं. ठीक है, मैं उसका नाम लिख देता हूँ, सर्किट नहीं बना रहा हूँ. QLN 2803A ये भी होता है. ठीक है, इसके पास आपके पास 8 इनपुट एंड 8 आउटपुट पोर्ट्स होते हैं. ओके, सो 8 इनपुट पोर्ट्स अगर आप इसके देखेंगे तो कहां से कहां तक है, यहाँ पे कितने इनपुट पोर्ट्स है, 7. सो ये होगा आपका 1B से लेके 8B तक. जैसे ये 7B तक था, एक और बढ़ जाएगा. एक आउटपुट पोर्ट रहेगा वो 1C से लेके 8C तक होगा. रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम. ओके, तो जितने इनपुट पे आपको इसको पोर्ट पे इनपुट देना है उतने पोर्ट पे कनेक्ट करिए, बाकी एज इट इज छोड़ दीजिए. और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब 1B का आउटपुट 1C पे आएगा, 2B का आउटपुट 3C पे आएगा, 3B output will appear at 3C, like that. Okay, are you getting the point? Okay, so this is required for, this is the driver circuitry which is required for the configuration, okay, of stepper motor. Okay, so theory is finished from my side. Any questions if you have, then please tell me. Any questions if you have? No questions? No, sir. Fine. So now just let me connect my second laptop. Okay, because the software is there in that. Okay, so by that time you please open the Proteus, open your you open your what's that called, Keel, right, software that you have. Keel and Proteus आप open करके रखिए. ठीक है, फिर मैं आपको प्रोग्राम दूंगा, प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ. प्रोग्राम इज वेरी वेरी सिंपल. ओके, यू कैन डू इट इन 2 minutes. ओके, Proteus पे आपको मैंने बताया है कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड आप बनाते जाएंगे मेरे साथ. ठीक है, वेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और आज आप प्रोग्राम लिखेंगे. ठीक है, मैं आपको प्रोग्राम देने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्क्रीन शेयर करूंगा, आप प्रोग्राम लिखिए. आपको मैंने लास्ट टाइम स्टेप बताया था कैसे कील में प्रोग्राम करते हैं. ठीक है, प्रोग्राम बहुत सिंपल है. ठीक है, आप आज प्रोग्राम लिखेंगे. लेट मी कनेक्ट. ठीक है, चलिए तब तक ये कनेक्ट हो रहा है, तब तक मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ.
Okay. Now you know the sequence, okay, that you have. Okay. So what will be the program? Okay. So or let me draw the interfacing diagram by that time. Okay. Sorry. Take another page. Okay. And what will be the program for it? Okay, let me show you the program in the software only. Then you can write it from there. And I hope that you know how to make the programming key. You select project and open new project. Okay. Save it by making a new folder like experiment number 2, and then you take stepper. You remember that point, but any problem is there? Shall I show you once again? Tell me, what the problem? याद है सबको या फिर मुझे बताना पड़ेगा वापस से? Am I audible? सर एक बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा तो पूछ लेंगे. ट्राई करिए, तब तक मैं ओपन कर रहा हूँ. कनेक्टेड. For the microcontroller, we need to select AT89C51, right? Yeah, 89C51. 89C51 you have to select. Atmel में जाइए, 89C51 select करिए. Yes, sir. It's not having the things right now. To download it. Okay, by that time I'm just going to connect it from here because it will take a little bit of time. I'm just going to put the figure of the program. Okay, I hope you know that how to write the program in that. Considering that, I'm just going to put the program in the group. Just give me 1 second. एक बार बताना क्या किया. Steps भूल गए? हाँ सर. ठीक है, रुको एक मिनट, मुझे टीम्स कनेक्ट करने दो, फिर देखते हैं. ठीक है, मैं काम करता हूँ तब तक. प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट आपको लेके और आपके ग्रुप में डालता हूँ. जिनको पता है कैसे प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, वो लिखिए. तब तक मुझे थोड़ा टीप सीधा करने दीजिए, ठीक है, और आप रेडी होइए प्रोग्राम के साथ. मैं व्हाट्सएप करता हूँ आप लोगों को, ठीक है.
इसका नाम क्या है इस वाले का? कोई भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेपर का है ना? स्टेपर मोटर इंटरफेसिंग। अच्छा, वो नाम अगर पूछ रहे तो स्टेपर मोटर इंटरफेसिंग, स्टेपर मोटर इंटरफेसिंग में 805 है। कंपनी कौन सी थी माइक्रो प्रोसेसर की? एटमेल में जाना है, एटमेल में 89C51। पार्थ आपको मैंने व्हाट्सएप किया है, ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। You take the program and write it over there. I'm not going to share the program today. Okay. हेलो। Write a program by the time I'm connecting the teams. Okay, in my second laptop. Okay, and then I'll be explaining. तब तक आप प्रोग्राम करके उसको रन करके ओके करिए, टेक्स्ट फाइल जनरेट करके, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करिए। First you have to select a new project. Okay. New project में जाइए, then give it a name. Okay. Then you have to select Atmel and 8051 you have to select 8089C51, वो चिप आपको select करना है, ठीक है। Then the project will be created and then you have to select the file, new file, and on that you have to write this program that I shared, and then you have to save that file with .asm extension, and then you have to click on build all. Okay, once it is built, then you have to add that file in your project, and then you have to click on rebuild all. But before that you have to select the output that that will have the hex file, and then the hex file will be generated. If you can access the video of, I think you can access the video. Okay, by the time you just go to that video of the last lab, okay, and have a look at that, how we have created that. Yes, tell me. बेसिकली कील में जो प्रोजेक्ट करके जो ऊपर जो बार है उस पर जाके जो म्यू की का न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो उसके अंदर उसने माइक्रो प्रोसेसर पूछा, तो एटमेल का 8089C51 89C51। हाँ, उस पर क्लिक किया तो एक टारगेट जनरेट हुआ उसमें। अब सीधा न्यू फाइल क्रिएट करके टेक्स्ट फाइल हाँ, क्रिएट वहाँ पे करके करना ना? करेक्ट करेक्ट हाँ। करेक्ट।
please keep on doing. If you need any help, you just go to the previous lab video and just look at it how we have done that. By the time I'm installing the MS Teams over here, and then I will reconnect. Proteus में जो करना है उसमें कंपाइलर कौन सा यूज करना है? Compiler by default ready तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा ठीक. सर .asm रखना है ना एक्सटेंशन फाइल का. .asm. Just wait for a second. Let me disconnect from here. I'll be joining from there. You save the file with .asm extension and then you click on build and check for any error. If there is no error, then you can produce the hex file. Wait for a second. I will be connected. I'll show it to you.
Sir, Yes. sir, for me showing target not created. Why? Because there will be some error in the program. You just see that whether you are getting any error. So no, there are 0 errors. There is some mistake in the program that you have did. Just check it once. Yes, sir. If there is any space even matters over here. Okay. So check it once again. Okay, sir. Sir, in Proteus, we need to open the PCB layout once again. Yeah, you can open it. Just a second. Let me disconnect from here. Am I audible? Am I audible? सर कोड में एरर आ रहा है. एक मिनट. Wait. Let me share my screen. Okay, can you see this program now? Can you see this program now? Yes, sir. Yes, sir. So, okay, let me do one thing. Okay, I'm sharing you the file in that case because I can rectify by looking at the screen. So let me put it in the chat.
Okay, I'm sharing you this in the chat. Please open this and put it in place of your program. Maybe because of some error it is not showing. So what you have to do, how any one of you is not able to do this, then tell me. I'll tell you again in that case how to do that. Shall I explain you once again? No, sir. Okay. So have you generated hex file? Yes, sir. Okay. Anyone who has not done it, please tell me. I'll explain you once again how to do that. सर एक बार Everyone. बताओ ना, क्योंकि ठीक. कोड में बार बार ये टारगेट नॉट क्रिएटेड आ रहा है. हाँ, क्योंकि आपका कोड में प्रॉब्लम है. ठीक है, रुको बताता हूँ फिर से. ओके, ठीक है. तो अभी जाएंगे कील में जाएंगे. ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे. देखो यहाँ पे ध्यान से, कील में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, एक नया फोल्डर बना लेंगे डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी जहाँ पे आपको अच्छा लगे, क्योंकि बहुत सारे फाइल जनरेट होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, MCES lab2 करके एक आप फोल्डर बना लीजिए. मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसलिए मैं एक अलग नाम देता हूँ. इस फोल्डर में स्टेपर करके एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया, सेव कर लिया. ठीक है, अभी ये देखो, ये आपसे इस तरीके का विंडो आएगा एंड इट विल टेल यू टू select. So we have to go to atmel and then you select 89C51. Here it is, 89C51, and click on OK. Yes, it will create a target and a source group will be created. Okay, now go to file and select new. एक फाइल ओपन होगा आपका. अभी मैंने जो आपको प्रोग्राम यहाँ पे भेजा है उसको कॉपी करिए. ठीक है, और उसमें पेस्ट कर दीजिए और उसको सेव कर दीजिए. ठीक है, और सेव करते टाइम हम लोग डालेंगे स्टेपर जो भी है और .asm डालेंगे उसका एक्सटेंशन. जैसे ही आप ASM से सेव करेंगे आप देखेंगे उसका फाइल का पूरा कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, अभी ये फाइल को इधर ऐड करना है. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे करेक्ट सोर्स पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स टू द ग्रुप, और वो फाइल सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा है जहाँ पे है आपका फाइल. तो मेरे पास यहाँ पे करिए ऑल फाइल्स, दिखाई देगा फिर आपको. ठीक है, ओके, इसको मुझे वापस से सेव करना पड़ेगा. फिर से एक मैं नया फाइल ले लेता हूँ, सेव करूँगा, फाइल सेव एज, और सेम फोल्डर में सेव करेंगे जहाँ पे हमने रखा है डेस्कटॉप. फिर ये lab2 try pepper1.asm. ठीक है, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया. फिर आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल टू द ग्रुप. अभी सर्च करिए वो सेम फोल्डर में जाके ऑल फाइल्स करिए. ठीक है, तो आपको दिखेगा, ओ सॉरी, स्टॉप. ये देखिए pepper1.asm दिख रहा है. ऐड कर दीजिए, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए. ठीक है, फिर आप यहाँ से बिल्ड टारगेट करिए, बिल्ड टारगेट पे क्लिक करिए, बिल्ड आउटपुट. ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगा ये assembling this and then at the last it will show you 0 error and 3 warnings. That means what, the program is okay. Now you can create the hex file.
यहाँ सर तक हो ऐसे गया? ही किया बट फिर भी अभी भी एरर ही आ रहा है आपका क्या कोड यूज करने के बाद। क्या एरर आ रहा है Yes, sir, बताओ? same. क्या एरर आ रहा है बताओ? मैंने भी अभी यही कोड सर यूज किया कमांड है। फाइल स्टेपर नॉट फाउंड, टारगेट नॉट क्रिएटेड। कमांड फाइल नॉट फाउंड। तुमने अलग से फोल्डर बना के, और कोई है जिसका ऐसा एरर आ रहा है? नो सर। Yes, sir, Sir, same. I No, think sir. they need to The save the target file not again. created. वेट वेट वेट, वन बाय वन, टेल मी। I think they need to save the file again and then they need to build it again. So what you do, have you taken it over here .asm in the same folder? यस सर। अगर नहीं है तो एक काम करिए, उसको वहां से रिमूव करिए, ठीक है, और वापस से ऐड कर दीजिए। इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। ये देखिए, रिमूव फाइल stepper1.asm, इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है, और वापस से इसको ऐड करके देखिए होता है क्या। लाइक सोर्स में फिर से ऐड करता हूँ, क्योंकि यही कोई मिस्टेक होगा इसलिए वो एरर आ रहा है, ठीक है। सेम फोल्डर में जाएंगे, ये देखिए फाइल दिख रहा है, ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे और फिर से बिल्ड टारगेट पे क्लिक करें। चेक करिए एक बार फिर से, सर अभी भी वही हो रहा है, क्या एरर आ रहा है सेम। बाकी लोगों का? So I have the same problem. And what what remove what it is and actually showing? command file stepper not found, target not created. ओके, शेयर योर स्क्रीन। कौन बोल रही है? शेयर करो अपना स्क्रीन। लेट मी चेक इट वंस फ्रॉम हियर इफ आई कैन चेक। So if you should share a screen because I can't. I'm using it Okay, on okay. my phone. Okay, but how you can do that on your phone? No, sir, I'm doing the experiment on the laptop. Just operating Okay, it from my okay, phone. Yes, sir. okay, yeah, okay, okay, anyone who is यश, आपका नहीं आ रहा था बेटा? हाँ सर। एक मिनट। ओके, ठीक है, शेयर करो स्क्रीन। सर ये आ रहा है। कमांड फाइल स्टेपर, नहीं, कुछ तो तुमने प्रोसेस में गड़बड़ किया है इसलिए आ रहा है, तभी ये टारगेट क्रिएट नहीं हो रहा है। डू एक इट वन और मोर क्रिएट टाइम। करके देखो पूरा यू प्रोजेक्ट डू सर। इट वन मोर टाइम, यू डू इट वन प्रोजेक्ट टाइम। मेरे सामने करो, चलो न्यू प्रोजेक्ट लो, ठीक है, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाओ, ठीक है। चलो वापस से नया फोल्डर क्रिएट करो। नहीं 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 नहीं, वापस से नया फोल्डर क्रिएट करो, है वहाँ पे ऊपर ऑप्शन, करो एक्सपेरिमेंट 2 ट्राई, सर किया ये। ठीक है। यहाँ पे नाम दो उसका कुछ, स्टेपर दो, STEPPER, ओके, सेव। यहाँ पे सेलेक्ट करो atmel 89C51, ओके, ऐड, यस, ठीक है। अभी न्यू फाइल सेलेक्ट करो, पेस्ट करो यहाँ पे कोड, सर ठीक कर है, दिया। इसको सेव एज करो, उसी फोल्डर में करना है, वहीं पे, ये वही फोल्डर था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट यस एक सर। मिनट ESP नाम दिया था तुमने फोल्डर का? नहीं, हाँ सर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 2 में पहले से सेव कर रखा है ना पुराना वाला। ओके, ठीक है, ठीक है, नाम दो इसका स्टेपर, .asm, एक मिनट .asm करना है। इसको ये करो, वापस से ओपन करो, सेव, किया सर यहाँ पे सेव। आया, ठीक है।
अभी यहाँ पे राइट क्लिक करो सोर्स ग्रुप पे, हाँ, और ऐड एग्जिस्टिंग फाइल ऐड करो, बिल्ड टारगेट करो, क्लोज कर दो ये। आ गया? हाँ सर। ठीक है, रफा आपका आ गया बेटा? Yes, sir. फाइन। ओके, और कोई है जिसका नहीं आ रहा है आउटपुट? नो प्लीज स्टॉप शेयरिंग। सबका आ गया यहाँ तक? ठीक है, अभी क्या करने का है? अभी अपने को हेक्स फाइल जनरेट करना है। तो हेक्स फाइल के लिए क्या करेंगे? टारगेट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शंस फॉर टारगेट 1। ओके, ऑप्शंस फॉर टारगेट 1 में जाएंगे। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करिए, कितना? 11.0592 मेगाहर्ट्ज। ओके, एंड क्लिक ऑन आउटपुट एंड क्रिएट हेक्स फाइल। ये दो चीज़ें करनी है। टारगेट में जाइए, 11.0592 फिल करिए, आउटपुट में जाके क्रिएट हेक्स फाइल सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, एंड देन यहाँ पे आएगा रीबिल्ड ऑल, तो रीबिल्ड करिए, फिर आपका हेक्स फाइल जनरेट होगा लास्ट में। देखिए, क्रिएटिंग हेक्स फाइल, स्टेप 1, 0 एरर, 3 वार्निंग। ठीक है, यस सर। आपको चाहिए तो आप वो फोल्डर में जाके चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अभी अब ओपन करेंगे प्रोटियस। ये अपना हेक्स फाइल अपना रेडी है। अभी प्रोटियस ओपन करते हैं और वहां पे अपने को सिमुलेशन करना है, उसके लिए हेक्स फाइल लगेगा। ओके, मैं ओपन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, कि मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा था। ओके, सी, ये मेरा कनेक्शन है जो मुझे करना है। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, देखिए। ओके, वेट, ये रिलोड नहीं, सी, इट इज मूविंग। If I can zoom it over there, just look at the how much angle it is telling by the stepper motor: 90, 180, 270, 360. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Right, so this is the thing that you have to do. You have written the program for this, and in the same way you can write the program any on the program, and you can load the hex file, and your stepper motor will be moving like this. Okay, so now let's do it. Okay, and I hope that how to take that this interface you are getting it over here. 8051 आपने सिलेक्ट कर लिया, वो तो आपने स्टार्टिंग में ही रखा होगा 8089C51, या इसको भी वापस से बताना है? बोलिए सर, मोटर Shall I और tell वो you? सब ऐड कैसे करेंगे? हाँ नहीं, ये मैं बताता हूँ। आपके पास 8051 है ना, उतना तो है? हाँ सर, है। ठीक है, Yes, sir. चलिए अभी या अब यहाँ पे देखिए, ये पी पे क्लिक करिए, ये पी यहाँ पे जो पी है, और यहाँ पे जाके ये सर्च करिए, लाइक ULN आएगा ये, और आपको सिलेक्ट करना है 2003A। देखिए मेरा जो यहाँ पे फाइल है 2003A है, तो यहाँ से आप 2003A सिलेक्ट करिए। ठीक है, देखिए इसके बारे में पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पे? हाई वोल्टेज हाई करंट डार्लिंगटन ट्रांजिया, आई वाज फॉरगेटिंग दैट, बट दैट्स अ डार्लिंगटन पेयर transistor, okay, which is giving you the high voltage and high current gain. Okay, so ULN 2003A select कर लीजिए वहां से एंड पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। फिर सेम वे में आपको खोजना है स्टेपर। ओके, तो स्टेपर में भी आपको कौन सा यूनिपोलर सिलेक्ट करना है, तो ये वाला स्टेपर मोटर है। सेम उसी तरीके से यूनिपोलर सेलेक्ट करिए। ठीक है,
और इसको पुट करिए यहाँ पे। ठीक है, कनेक्शन की अगर बात करेंगे तो कनेक्शन, कैन यू सी द कनेक्शन? किस तरीके से आपको रखना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। कनेक्शन हमने कैसे किया हुआ है, पोर्ट 2 को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है क्योंकि हमने अपने कोड में पोर्ट 2 पे ही जो भी डेटा है अपना उसको ट्रांसफर किया हुआ था। इफ यू कैन मेमोराइज, लुक एट दिस, मूव पी टू ए में हमने 0C रखा और उसको कहाँ मूव किया, पोर्ट 2 पे, राइट? ओके, सो वी विल कनेक्ट ओनली पोर्ट 2। सो देखिए अपना पोर्ट 2.0, 2.1, 2.3, 2.2, 2.3, इसको इधर के पहले 4 पिन से कनेक्ट किया। ठीक है, और आपको पता है इसका बाकी अगर आपको यूज नहीं करना है मत यूज करिए, छोड़ दीजिए। बाकी इस साइड में कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट लेंगे। एंड प्लीज लुक एट दिस फिगर एंड मेक द कनेक्शन लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए करिए फटाफट से, ये आपको दिख रहा है सबको, सबके पास कंपोनेंट्स हैं, यू नो हाउ टू कनेक्ट इट। थोड़ा सा जूम आउट कर दो। थोड़ा जूम आउट कर दो। ओके सर। इधर यश इधर कुछ भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने जूम इन करके रखा था। इधर कुछ कनेक्शन नहीं करना आपको, इसलिए हाँ मैंने सर, थोड़ा वही जूम इन किया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ इसको देख के करिए कनेक्शन, बाकी कोई कनेक्शन नहीं है किधर भी। ULN 2003, as I told you, it's a Darrington pair, and why we are doing this, because we need high current gain, okay, to drive the stepper motor. Okay, अभी ये सब कैसे कनेक्ट किया मैंने, ये मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इधर करिए। बाकी कनेक्शन करिए, इस कनेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आउटपुट नहीं आएगा। इसको सेव करते भी रहिए। ग्राउंड कैसे लेना था, मैं भूल गया। हाँ मैं बताता हूँ कैसे, नहीं ग्राउंड नहीं है ये, अगर आपको पुट करना है, ये सब कनेक्शन हो गया। मेक श्योर देखिए, मैं ये इसका A है, B है, एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, तो आप इसी सीक्वेंस में कनेक्ट करेंगे, वो सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देख लीजिए 16 टू दिस पिन, बीच वाला जो पिन है वो दोनों कॉमन कनेक्ट करके फिर उसको कॉमन पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो यू मार्क दैट सीक्वेंस शुड नॉट बी wrongly connected। फिर अपने को इसको एक सप्लाई देना है, तो व्हाट वी विल डू, गो टू द जनरेटर मोड, ओके, एंड select DC, okay, and then this will appear and you just click on this one like this। पहले आप कनेक्शन कर लीजिए, फिर मैं एक ही बार बता देता हूँ सबको। सब लोग कनेक्शन करिए फटाफट से। हो गया, कनेक्शन हो गया सबका? Done with the connection everyone? यस sir. Fine. So now how to put this one? ये आपको AC कैसे यहाँ पे पुट करना है, यू सिलेक्ट ओवर हियर, यहाँ पे जाइए, जनरेटर्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके DC सिलेक्ट करिए। ठीक है, और फिर जहाँ पे रखेंगे तो आपको ये इस तरीके का आइकॉन आएगा, फिर यहाँ पे ये जो कॉमन पोर्ट आपने बनाया वहाँ पे रख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, फिर जैसे ही आपने रख दिया इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे DC सिलेक्ट कर लीजिए और 12 वोल्ट सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, Sir, could you Yes. please repeat? yes, yes. You go to generators tab
okay, and there select DC. So where you are going to place that DC, इस तरीके से आइकॉन आएगा तो उसके इस वायर के साथ कनेक्ट करके बस क्लिक करिए, वो ऐड हो जाएगा। फिर ऐड करने के बाद उस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पे जाके एनालॉग टाइप में DC और यहाँ पे वैल्यू 12 करके ओके कर दीजिए। सर ये जनरेटर कहाँ से आया? यहाँ पे है बेटा जनरेटर, यश यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। यस सर। So 12 volts, right? यस 12 वोल्ट्स। डबल क्लिक करेंगे, उसमें DC सेलेक्ट करेंगे और 12 वोल्ट्स करके ओके करेंगे। ठीक है, फिर ये आपका टर्मिनल था। इसको कैसे करना है, कहीं पे भी राइट क्लिक करिए, प्लेस, ओके, एंड गो टू टर्मिनल एंड सिलेक्ट द पावर। ये मिल गया आपको, उसको रख के 9 के साथ कनेक्ट कर दीजिए। कैसे आया, कहीं पे भी राइट क्लिक करिए, प्लेस, टर्मिनल, पावर। बस यही 2 कनेक्शन है जो आपको करने हैं। सेव करते रहिए अपने प्रोजेक्ट को। हो गया सबका इतना? आगे आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है आगे। इसके बाद सेव कर लीजिए, फिर अपने माइक्रो कंट्रोलर पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए, अपना हेक्स फाइल को कॉल करिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। डबल क्लिक करना है, हेक्स फाइल को यहाँ पे लेना है और ओके करना है, एंड देन क्लिक ऑन रन द सिमुलेशन। How many of you are getting this output? Sir, got it. Yes, sir. Getting Getting. it. Yes, sir. Got it. So you can see that in the program what I had maintained is why we are getting this output 9C63. You remember that code, okay, which I had written the hex values over there, okay. So check it out that this sequence is for which one, okay. सर If you check out, zoom out करो ना। Wave zoom out, mode. okay, okay, ठीक है, देखो सर वो कनेक्शन में देखना था। हाँ देखो ना कनेक्शन, बस इतना ही कनेक्शन है। माइक्रो कंट्रोलर के साइड में कोई भी कनेक्शन नहीं किया है। नहीं सर, वो जो उसका VCC वाला है वो वाला किधर है? कौन सा, ये वाला? ये वाला, ये जो कॉम के इस साथ साइड कनेक्ट वाला जो किया है, माइक्रो प्रोसेसर का जो कनेक्ट हो रहा है ऊपर की साइड का। ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड ही होगा, वो तुम्हें कनेक्शन नहीं करना है। नहीं सर, मेरे में नहीं है। ये वाला, हाँ सर। ये होना चाहिए, देखो अगर नहीं है तो कनेक्ट कर दो, चलेगा, बट ये बाय डिफॉल्ट होता है। हो गया सर। हो गया, चलो अभी ठीक है। तो अभी नाउ यू कैन सी द डिस्क्रीट स्टेप्स दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम दैट यू हैव रिटन। सो यू आर फॉलोइंग द स्टेप्स, okay, of which category, okay. So you are following the step of which category? You are going 0C, 06, 03 and 09, right? So you are in full step sequence where you are energizing the coils, 2 coils at a time, okay. If you remember that, I have already explained you that there are 3 ways for it. One is when you excite a So single full coil. stepping is for wave, but this will be wave stepping, right? Yes, obviously. Hello. Okay, yes, you're right, okay. So 9C63 वाला जो सीक्वेंस में आपने कोड लिखा है, तो उसमें ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए, बिकॉज वो आपका होमवर्क होगा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको चाहिए कि आप
अभी दूसरा कोड आप लिखेंगे, आपको मैंने कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं? आई हैव गिवन यू 3 ऑप्शंस। ओके, एक आपका मैंने दिया है किसमें, जब आप सिर्फ एक सिंगल कॉइल के ऊपर लेके जाते हो उसको, ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन में, ये 2 कॉइल्स के बीच वाला कॉन्फ़िगरेशन है, और एक जिसमें 2 कॉइल के बीच में और फिर सिंगल कॉइल, मतलब 45 डिग्री वाला कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो आपको बाकी तीनों का कोड लिखना है, ठीक है, और उसको हेक्स फाइल, कनेक्शन ये रहेगा, हेक्स फाइल यहाँ पे लीजिए और वहाँ पे आउटपुट जाएंगे, तो आउटपुट को यहाँ पे आपको एंगल देखना पड़ेगा एक्चुअली, उससे पता चलेगा कि कितना घूम रहा है ये। ठीक है, तो ये एंगल सेकंड वाले टाइम पे भी, जो सेकंड टाइम होगा आपका, उस टाइम पे जैसे मान लीजिए अभी आपका कितना घूम रहा है, ये हमने 2 कॉइल्स के बीच वाला सीक्वेंस लिया, तो 90 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है, देख लीजिए। वापस से मैं सिंगल कॉइल वाला कॉन्फ़िगरेशन लूंगा, ठीक है, तो वो मतलब वेव वाला, ठीक है, अगर वो वाला मैं लूंगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही एंगल दिखेगा, कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है, इस सिमुलेशन में। बट अगर मैं एक और जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया जिसमें आप 45 डिग्री का स्टेप्स लेते हो, तो वहां पे ये एंगल 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री में घूमना चाहिए। फाइन, आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर विद दिस पॉइंट। एनी प्रॉब्लम? Sir, No, sir. sir, one is this, one is 45 degree. What is the other one? See, in Single 90 coil? degree you have two options. In 90 degree you have two options, na? When you are energizing 2 coils, and or second is when you energize only 1 coil, right? तो ये जो हमने Oh, कोड okay. लिखा है when we energize 2 coil, तो आप सिंगल कॉइल वाला भी करके Yes, देख sir. लेना, और एक दोनों का जो मिक्सचर है वो भी करके Okay. देखना, ठीक है? ओके, Yes, sir. Right. फाइन, हो जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा, और उससे आपका आपका प्रोग्राम भी ये है, okay, done with the homework, done with the homework। किसी को कुछ तकलीफ है होमवर्क में? आई होप यू कैन डू द कोडिंग एंड यू कैन रन द सिमुलेशन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, just you have to change your hex file after generation, and then you have to load it over there and just see the rotation angle, that's it। Yes, sir. I hope you are clear with this। Yes, sir. Okay, so that is your homework and that was the experiment that we have to perform। Okay, we had to perform, so I hope that this point is clear। स्टेपर मोटर में और कुछ भी नहीं है, इतना ही होता है स्टेपर मोटर में, ठीक है। स्टेपर मोटर आपका मैंने करवा दिया, आपको थ्योरी भी आपको मैंने पढ़ा दिया। आई होप दैट इज क्लियर फ्रॉम माय साइड एंड योर साइड एज वेल, एंड फिर आपने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया, ठीक है। पार्थ, इज इट ओके? Yes, sir. फाइन, ओके। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा, राइट, so how the question is coming, write the interfacing program, write the interfacing write a program to interface 8051 with stepper motor, okay, and the with these many rotations, okay, and the step angle will be given, and आपको बोला जाएगा कि वो प्रोग्राम लिखिए, ठीक है। so either it will be for 90 degree rotation or 45 degree rotation, ठीक है। and I hope now the program is clear to you, you can do it in any other for any configuration required, okay। but remember, when you are writing the program, interfacing diagram is must, so whatever program you can see, you are looking over here on this Proteus, this figure you have to draw it before writing the program, otherwise आपका जो मार्क्स है वो डेफिनेटली हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ मार्क वी गिव फॉर द इंटरफेसिंग डायग्राम एंड हाफ मार्क वी गिव फॉर द प्रोग्राम। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो लाइक ऐसा कंपलसरी कि डायग्राम पहले ही होना चाहिए, बाद में नहीं चलेगा? कंपलसरी है, क्योंकि मैं आपका इंटरफेसिंग डायग्राम देख के ही प्रोग्राम चेक करूंगा, क्योंकि क्या होगा, आप प्रोग्राम में पोर्ट 2 पे ट्रांसफर करेंगे और इंटरफेसिंग डायग्राम में पोर्ट 1 को इंटरफेस करेंगे, तो फिर आपके मार्क्स जाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, लाइक
माइक्रो प्रोसेसर की सारी पिन नहीं दिखाएंगे चलेगा, सिर्फ जो पिन यूज में आने वाले वही दिखाएंगे चलेगा? चलेगा, अगर तुम्हें शॉर्टकट लेना है तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, वही दिखाओ, बट इंटरफेसिंग मुझे दिखना चाहिए कि तुमने स्टेपर मोटर को कौन से पोर्ट से कनेक्ट किया है, सिंपल, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि तुम्हारा प्रोग्राम, अगर मैं अभी ये जाके जहां जहाँ पे मैंने P2 लिखा है P1 कर दूं तो ये प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, है ना? Yes, sir. राइट फाइन, तो Yes. फिर वो समझने के लिए फाइन। सो आई हैव मार्क्ड एवरीवन प्रेजेंट, यू प्लीज, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं किसी को भी लैब लेने से पहले बोलूंगा, ठीक है, कि यू शो मी द आउटपुट ऑफ द स्टेपर मोटर फॉर दिस प्रोग्राम, तो आपको दिखाना पड़ेगा आपका स्क्रीन शेयर करके, ठीक है, इतना हो जाएगा। So are we supposed to Yes. maintain It any doesn't- word file with the screenshots and the code? You have to submit the screenshot, you can take it from here and you can take a screenshot of the interfacing diagram, that's it. आप वो करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको राइट अप शेयर करूंगा, तुरंत उसमें पेस्ट करो एंड दैट्स इट। Okay, sir. Fine. Okay, so I hope that today's session you have understood it well. Okay, so let me stop sharing. Thank you very much for your patient listening. Okay, apart, you can now stop recording the session. Thank you.